हमारा चैप्टर 3 है मिस्टर करण भारद्वाज के साथ, जो सीईओ एंड एमडी है एक्सपीरियंशियल ईजीसी कंपनी के। ये कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में डील करती है। आज हम उनसे उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे। बता दें कि ये अपनी कंपनी के साथ शार्क टैंक में जा चुके हैं, वहां पे फीचर हो चुके हैं। तो उसके बाद का एक्सपीरियंस उनसे पूछेंगे, उनका पूरा कैसे उनकी कंपनी को वो रन करते हैं, उनके फाइनेंशियल्स, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी मार्केट स्ट्रैटेजीज, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, ताकि आप लोग यानी हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे व्यूअर्स इन सब चीजों को समझ पाए कि कैसे प्लानिफाई अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है फंड रेजिंग, प्रॉपर फंड रेजिंग के प्रोसेस में। एक्सपीरियंशियल ईजीसी एक 4 साल और बोल सकते हैं शायद अब उनको 5 साल के अराउंड हो गए हैं बने हुए, एस्टैब्लिश हुए, मार्केट में आए हुए। 360 डिग्री के साथ वो एफिलिएटेड है। तो चलिए मिस्टर करण भारद्वाज के साथ अपनी इस छोटी सी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर करण भारद्वाज। पहले तो अपनी कंपनी और कैसे आपने उस कंपनी को स्टार्ट किया, हाउ द नेम एक्सपीरियंशियल came into your mind and in the existence. So I have always been an entrepreneur, Mansi. 2007 MBA finance खत्म करने के बाद I was in the finance industry taking care of debt, equity, futures and options, insurance and products like that. I held an H&I portfolio of 100 plus crores. But थोड़ा सा advertising में interest और branding और consumer insights में interest था, and which is why 2010 में मैंने एक company start करी थी in the name of Adometer. So Adometer was all about branding personal vehicles with the brands and then paying them for the kilometers that they drive. But then I was probably too naive in that industry and I had to shut shop, and also it was affecting my existing business which was really making good money for me. So मैंने बंद तो कर दिया, पर थोड़ा कीड़ा था advertising का. So 2017 when I thought I want to get back to advertising, तब I thought that the best way to get into it is using technology. और technology में holograms is something जिससे हमने start किया. Crip Media is the legal name of the company, but last year से हमने इसकी rebranding कर दी and kept the name as Experiential etc. because हर agency में, हर industry में experiential activation बहुत ज़्यादा लोग search कर रहे हैं Google पे. And now after becoming a brand, instead of हम clients तक पहुँचे, clients हम तक पहुँचने लगे हैं because हमने एक SEO strategy बना ली है. So अब अगर आप Google करेंगे AR agency तो हम number 1 पे आएंगे. Right, experiential activations, तो हम आएंगे Google के search results में, and that is the reason कि हमने अपना नाम switch किया. So that's the journey of the company. We'll be completing 5 years now in August. Yeah, that's correct. Okay. So next we have that we came to know that you guys were at the platform of Shark Tank, such a brand name. So how was your experience there? And after featuring, वहां से वापस आने के बाद कैसे ऑर्गेनाइजेशन की लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई, आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई? आई बिलीव कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बोथ द थिंग्स। तो वहां से फीचर होने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा था? So it's coincidence. It's a coincidence कि उसके फीचर होने के बाद चीजें चेंज हुई, बट शार्क टैंक की वजह से कुछ नहीं हुआ except in terms of PR and credibility. So the first thing that happened because of Shark Tank is hiring easy बन गई. तो लोग जो हमें देख रहे थे, they started reaching out, students, engineers, developers. So talent ढूंढने में problem नहीं हुई. That's a very good thing that happened. Secondly, credibility in terms of the existence of a brand, that happened. But in terms of sales numbers या revenue या ऐसी चीजें कुछ बड़ा नहीं. So when we got featured, from the time we got aired, when we were shot, from the time we got aired, there was a gap of 5 months. October, November, December, January, February. तो तब तक ऑलरेडी बिजनेस का जो स्केलिंग है वो हो चुका था. फेब में हमने स्केल करके रेडी कर लिया था और तब फीचर हुए, तो टाइमिंग वाज परफेक्ट और उसकी वजह से और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई. सो दैट हैपेंड, बट यस, नॉट बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, but Shark Tank was definitely a reason for us to get on the fundraising platform quite efficiently. Even VC started reaching out, जैसे Planify हमारे पास आए. उसके पहले हम अपना एक छोटा राउंड कर चुके थे, but now the landscape has become much bigger. So what all products are you offering to your customers and how they are different from the other products or your competitive spirits? एक होता है ना माइंड में प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए, तो वो वाले प्रोडक्ट्स आपके कैसे अलग हैं बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स से?
So I wouldn't call them products, they are actually solutions. So right from hardware to the software, ideation करना, analytics देना, design करना, पूरी creative तरीके से एक campaign को design करना, end to end is something that we do. 2017 से 2019 तक या 20 तक हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स करते, फिजिकल सॉल्यूशंस में थे, जैसे कि होलोग्राम्स बनाना, प्रोजेक्शन मैपिंग करना, सेंसर बेस्ड एक्टिवेशंस करना, ब्रांड लॉन्चेस, प्रोडक्ट सेंट्रिक कैंपेन्स. बट उसके बाद जब से कोविड हिट हुआ, वी हैड टू पिवट डिजिटली टू स्केल अप, एंड दैट्स व्हेन बिजनेस इन्वेस्टेबल भी बन गया, बिकॉज पहले बिजनेस स्केलेबल तो था, इन्वेस्टेबल नहीं था, इसलिए कोई इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होता था. इट वाज अ गुड प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, बट नॉट इनफ फॉर अदर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन माय बिजनेस. सो वो 2x 5x रिटर्न आना मुश्किल था. बट जब से हम डिजिटल गए हैं तो बिजनेस स्केलेबल भी हो गया है, इन्वेस्टेबल भी हो गया है, और अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बहुत कम हो चुका है. बिकॉज इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि और कंपटीशन आए ताकि मार्केट और ओपन हो, बिकॉज अभी भी एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में लोग 10% से ज्यादा बजट खर्च नहीं करते. बट टिकट साइज इतना बड़ा होता है that is enough for us to, and people like players like me to survive in this arena. But I think जैसे जैसे मेटावर्स, जिस तरीके से वर्चुअल स्पेसेस, जिस तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी फैल रहा है, in the next 2-3 years, this $30 billion industry, augmented reality itself, I think it will help us have more access to these clients, and the clients will also reach out to us because वो इन चीजों के through ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ ऑन ग्राउंड कैंपेन्स के लिए. Since you have talked about the market space and all these things, so are you planning like to expand this business to international at a global level also? No, so like I said, I mean, when I say global level, US is where we opened our office. I am in the US right now, and this is only because we have an event, AWE, Augmented World Expo, which is the biggest expo in augmented reality. So January itself हमने अपनी subsidiary यहाँ पे start कर दी थी. And India के बाद the biggest market that I see for solutions like ourselves. So yes, taking it global is on the agenda because metaverse western country से आया है और उसकी डिमांड ऑलरेडी हमको यूएस मार्केट में आ रही है, एंड जितने ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाइपलाइन और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. सो इंडिया एंड यूएस आर द टू प्लेसेस दैट वी आर लुकिंग एट. एक बार यूएस मार्केट पूरा सेटल हो जाए, सब्सिडरी कंप्लीटली ऑपरेशनल तो हो ही गई है, लेकिन बिजनेस आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वी विल वेंचर इनटू अदर टेरिटरीज. सो अभी जैसे प्रोडक्ट्स का बात किया, सारी आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट योर प्रोडक्ट्स, लाइक कि और ज्यादा उसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं, एक्सपैंडेड तरीके से कितना ज्यादा है प्रोडक्ट स्पेस में? सो ये सारे सॉल्यूशंस जो डिजिटल हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल स्पेसेस, वर्चुअल चैटबॉट्स, इंस्टाग्राम फिल्टर्स, स्नैप लेंसेज, मेटावर्स, वर्चुअल एप्लीकेशंस. So everything that is on the digital front. Physical front पे projection mapping, sensor based activations, brand launches using holograms, everything which is experiential in nature, these are the things that we are into. So अगर आप generalize करना चाहें as a layman language, if this is getting a little technical, I can tell you कि अगर आप जो भी advertisement देखते हैं आज, जिसमें टीवी इन्वॉल्व है, रेडियो इन्वॉल्व है, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया इन्वॉल्व है, होर्डिंग्स इन्वॉल्व है, उसमें हम नहीं हैं. इसके अलावा हम सब चीजों में, right? So people come to us except the traditional thing. Okay. Right? Everything experiential. So people come to us saying that they are launching something and they want to do something new. So everything new and innovative, which is experiential, whether it can be done on an on-ground basis or a digital basis, we are into it. Okay, great. So do you feel any, like you have told me this thing कि हाँ अभी तक आप कोई competition as such face नहीं किया है, कि आपको ऐसे competitors नहीं मिले हैं. So do you want to feel that competition? Like oh yeah, I love competition. Yeah, I mean, right. Why not? It just opens up the market, and I'm not scared of competition. And competition only helps me, price my solutions at a premium because I have the first movers advantage. तो ये कम मार्जिन वाला बिजनेस नहीं है. 70-80% हमारा मार्जिन होता है डिजिटल सॉल्यूशन. जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर आएंगे थोड़ा सा मार्जिन रिड्यूस होगा, बट जो accessibility of solutions है, जो scale है, वो बढ़ जाएगा because more clients will want to know, right? If they are dealing with one agency and if they are not happy with the rates or not happy with the quality, they will probably Google up more and then they will find us, and the likeliness is कि वो हमें पहले पहुंचेंगे because हम पहले business में हैं और हमारे use cases काफी ज्यादा है. Right. So like the solutions that you are talking about, इनको एक particular मार्क तक लेके जाने के लिए आई बिलीव कि स्ट्रेटजीज वगैरह भी बनानी पड़ती होंगी.
सो ऐसी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या उनके टाइम पीरियड्स आप मेंशन करके चलते हैं कि आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर अ वीक, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हाँ वो वाली स्ट्रैटेजी हमारी कहाँ तक वर्क की है, और लाइक यू आर प्लानिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस कि हम डेली का एक प्लान बनाएंगे विद योर टीम एंड ऑल, कि हम डेली का एक प्लान बनाएंगे उसके ऊपर वर्क करेंगे, या फिर मंथली बेसिस पे, तो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है आपके स्ट्रैटेजीज का, या फिर What kind of strategy, मानसी? Client acquisition की strategy या campaign को execution करने की strategy, किस चीज की strategy? क्लाइंट एक्विजिशन? क्लाइंट एक्विजिशन पहले चैलेंज था, अब चैलेंज नहीं है। अब नाउ वी हैव अ गुड प्रॉब्लम कि क्लाइंट्स हमारे पास बहुत है, काम बहुत है, डिलीवरी इज अ प्रॉब्लम। ओके क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो आज अगर हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे केपीएमजी के साथ डूइंग अ बिग प्रोजेक्ट, बट अगर एक और क्लाइंट उतना ही बड़ा आ जाता है तो वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, और मार्केट में बिजनेस है, वी जस्ट नीड टू गेट hold of them, and ensure that we are giving good quality delivery. So client acquisition के लिए we are not spending any money on marketing also, जो in-house SEO करते हैं बस वही करते हैं, and word of mouth से सब जगह से business आता है, and we are empaneled with 150 brands already. तो repetitive business बहुत ज्यादा आता है हम लोगों से। तो वो पर्टिकुलर स्पेस को फिल करने के लिए कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, मतलब अभी क्रिएट नहीं हुई है, या फिर कौन सी स्पेस को? जो भी आपने बताया ना कि क्लाइंट एक्विजिशन इज फाइन बट द डिलीवरी वाला पार्ट जो है उसको अभी फुलफिल नहीं, तो we are scaling up. I mean, last 6 महीने में from a team of 8 people, now we are close to 60 people. ओके तो जैसे जैसे कैंपेन्स आ रहे हैं, जैसे जैसे फंड रेज कर रहे हैं, डेट रेज कर रहे हैं, तो स्केल अप कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम डूइंग इज वी आर स्केलिंग अप व्हेन द बिजनेस कम्स टू अस। होना स्ट्रैटेजी ये चाहिए कि आपके पास पहले स्केल अप का पूरा रेडी होना चाहिए, और देन यू गो एंड गेट बिग क्लाइंट्स। सो दैट इज व्हाई द फंड रेज, ताकि हम एक पूरी टीम को एस्टैब्लिश करके रेडी रखें, और उसके बाद देन वी हैव मोर कॉन्फिडेंस इन रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स एंड से दैट वी विल डू इट इन 15 days, वी विल डू इट इन 10 days। अब ये हो रहा है कि क्लाइंट आता है एंड देन हमें रिसोर्सेज ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, सो वो गैप आ जाता है। तो वो गैप को फिल करने के लिए वी आर डूइंग अ फंड रेज। ओके सो प्लानिफाई से लाइक आई नो कि मतलब वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम लोग हर एक पॉइंट पे वी आर विद यू, तो आपका पर्सपेक्टिव प्लानिफाई को लेकर अभी तक कैसा है, like the way we are Perspective moving forward, yeah, your point is of view? complete point of view. I mean, it's very different way of fundraising. मतलब I am raising funds through 7 other accelerators, but मैंने ऐसा कभी स्ट्रैटेजी और मेथोडोलॉजी देखी नहीं है, और मुझे रीजन भी नहीं पता कि ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों है। बट इफ इट इज डिफरेंट, आई एम विलिंग टू ट्राई इट, एंड द ओनली रीजन इज आई एम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड। तो मुझे समझ आती है ये चीजें कैसे चलती है, कैसे शेयर डीमैट होते हैं, कैसे मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, आप फिर फंड रेज करते हो। तो there is some gap of time that you're trying to fill using this strategy, and Rajesh ka experience bhi hai in terms of in the gray market, in IPO market and stuff, so he's from a financial background himself, so that just helps me understand this method. Agar ye method successful hua to then we can do a VC round also that we are looking at the end of the year through Planify. right थोड़ी फाइनेंशियल्स की बातें कर लेते हैं सर। अभी FY21 का इट वाज द रेवेन्यू इज 3.5 crores, right? And you are forecasting for the coming year around 20 crores, and the next is 38 crores. In the coming next 2 years it will be around 90 crores. But that is assuming that I don't raise any funds after this round. Okay. If I continue raising funds, I will obviously scale up and the revenue will be higher. But ये जो current round है, उस हिसाब से इस साल का projection जो है वो 20 crore है। So from 3.5 to 20 crores, right? So इस इतना गैप का कुछ प्लान्स होंगे कि हाँ हम ये चीजें करने वाले हैं कि हाँ 20 करोड़ क्या 50 करोड़ तक पहुंचेंगे वो अगले साल में। तो plan is मतलब it's a realistic target, it's not pessimistic or optimistic, because जो हमने 3.5 किया that we did with a team of 15 people, and अब 60 लोग हो गए। So obviously delivery और sales team वो दोनों बढ़ चुकी है। पहले sales में अकेला कर रहा था 4 साल तक, now I have 5 people including myself, so that is going to be one reason. Second reason is हमने अभी पहला क्वार्टर तो खत्म भी नहीं हुआ है, और पहले क्वार्टर का में मतलब इस 2 महीने में ही हमने ऑलरेडी अराउंड 2.5 के आसपास कर लिया है। सो यानी कि बिना फंड रेज अभी फंड रेज चल ही रहा है, राइट? आई हैव नॉट इवन रेज्ड फंड्स। ये 20 करोड़ का टारगेट तब था अगर मेरे पास अप्रैल 1 को पैसा हो। अभी तक अप्रैल 1 को तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय राउंड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव मैनेज्ड टू फिनिश 2.5 crores of revenue, close to 2.5.
crores of revenue. So that means that we are on the right track. पाइपलाइन में बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े टिकट साइज है, एंड वी आर लुकिंग टू एग्जीक्यूट बड़े कैंपेन्स. इंस्टेड ऑफ 2 लाख 5 लाख अब टिकट साइज 10 लाख 15 लाख हो गया. सो दैट वे वी फील दैट 20 crores is easily achievable, and pessimistically भी देखा जाए तो around 15 crores should not be a problem. Valuation. Let's talk about some valuation now. So company is valued at around 46 crores in FY21. FY21, that's correct. Right. And by 23 you are forecasting around 300 crores. That's correct. Right. So इसके बारे में क्या plans है? So जो valuation हमने first करी थी, जिसमें हमने पहला फंड रेस किया था, that was at a 20 crore valuation. हम शार्क टैंक गए थे 50 करोड़ की valuation लेके, but I was okay with negotiating with Piyush and coming down to 25 crores last में, but he was looking at a bigger chunk, तो वो नहीं हुआ. बट हमने दिसंबर में ऑलरेडी अपने फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ एक डील कर ली थी एट अ 40 crore वैल्यूएशन, बिकॉज 3 महीने में हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था. तो हमने रीवैल्यूएशन करी एंड 40 crores पे इन्वेस्टर्स वर रेडी टू इन्वेस्ट फंड्स. बट हमने पैसे लिए नहीं, क्योंकि जैन में मैं यूएस आ गया, सीएस करने लगे, हमारी स्केल अप शुरू हो गई, हमने 2 ऑफिस बदले. सो फ्रॉम अ 300 square feet office which we started, now we are at a 3000 square feet office in Mumbai. We have another 2000 square feet tech center in Noida, and another setup subsidiary which is going in US. और ये सब उसी दौरान हुआ. So ideally अगर मैं मार्च में रिवैल्यूएशन करा था तो it will be easily close to around 150 to 200 crores. But ethically मैंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस कर दिया था कि 40 करोड़ पे मैं पैसा ले रहा हूँ. तो मेरा आस्क तभी बहुत बड़ा था, बिकॉज पैसे की उतनी जरूरत थी. पर अब मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ रीवैल्यूइंग द कंपनी एट 250 एंड डिसअपॉइंटिंग दोज इन्वेस्टर्स, आई थॉट कि अपने आस्क को कम कर देता हूँ. 7.5-8 करोड़ के आस्क को मैंने 2-2.5 करोड़ कर दिया. तो इन्वेस्टर्स भी खुश है एंड पैसा भी आ जाएगा इस टाइम पर. और ये भी है कि जो रीवैल्यूएशन होगी at in September October, that is when I'm looking at a higher valuation. So this is actually a discount valuation, so as to say, and pre-series A है, इसलिए series A जो होगा which should be close to 250 to 200 to 250 crores. इस मार्केट के बारे में, जो डिजिटल मार्केट है, इसके बारे में एडवर्टाइजिंग, आई वुड से पीआर, आई वुड से एट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस मार्केट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि इस मार्केट में एंटर करते टाइम आपके माइंड में कुछ आया कि सिर्फ यही वाली मार्केट स्पेस ही मुझे क्यों कॉन्कर करनी है, कैसे बाहर निकल के साइड बाय साइड कुछ और साथ में? नहीं, एंटर करते समय तो सिर्फ होलोग्राम से स्टार्ट किया था और हमें लगा था वो एलईडी फैन जो है होलोविजन वो आग लगा देगा मार्केट में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. बिकॉज कैंपेन के बाद ही क्लाइंट बोलता है कुछ नया चाहिए, फिर कुछ नया चाहिए. तो हमें तो लगा था यही प्रोडक्ट को स्केल अप करते जाएंगे. दैट डिडंट हैपन. सो ग्लास पे हमने होलोग्राम्स क्रिएट किए, स्मोक पे होलोग्राम्स किए और हर टाइप के होलोग्राम कर दिए. अब जब सारे होलोग्राम्स हो गए तो क्लाइंट ने फिर बोला होलोग्राम हो गया, अब नया कुछ और बताओ. तो फिर हमने सेंसर बेस्ड एक्टिवेशन, प्रोजेक्शन मैपिंग, ये सब शुरू करी. सो होलोग्राम्स करने के बाद देन अगेन जब हमने डिजिटल रैम में पिवट किया तो हमने सोचा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस इज इनफ, राइट, वर्चुअल. बट दैट वाज नॉट इट. ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ ह्यूज array of products by itself. तो AR में घुसे, फिर हम virtual spaces में घुसे, फिर हम लोग metaverse अब आ गया तो metaverse के कैंपेन आने लगे. तो we are experimenting with the same set of people of our in-house resources, because ये सारे developers ही हैं. और ये developers जो हैं ये जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स हमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के लिए चाहिए होते हैं, वही प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम बाकी चीजें भी करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ every campaign is reducing and the productivity is increasing. So this is the reason why I am into this arena. Advertising का वैसे ही passion है, consumer insights और brand story create करने में मजा आता है. और जब मजा आता है और पैसे भी बनते हैं, so that's like a great combination. Exactly. Very great. Okay, Karan, that is all from my end. Thank you so much for joining Planify, and I hope कि Planify सारी चीजें आपको बहुत amazingly करके देंगे according to your expectations. So good to see you, and I hope that we'll meet soon. Yes, we will, 100%. Yeah, I'll be traveling to Delhi so next week. Thank you, Mansi. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इंटरेक्शन मिस्टर करण भारद्वाज के साथ पसंद आई होगी. अगर आप ये इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये इंटरव्यू आपको वहीं पे लाइव मिल जाएगा. इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं. आपकी स्पेशल डिमांड पर हम आपको ये लिंक स्पेसिफिकली भी शेयर कर सकते हैं.
इसी के साथ साथ हम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां भी हमें जाकर जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।